چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کی ساس مہجبی نون کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے۔ آڈیو لیک میں وہ وکیل خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ سے گفتگو کر رہی ہیں۔ دونوں خواتین ملک کی سیاسی صورتحال اور موجودہ وفاقی حکومت سے متعلق گفتگو کر رہی ہیں۔ میں نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی کہ ہیلو رافیہ کیا ہوگا یار، میں تو رات سے نا عمر کے لیے پڑھ کے میں تمہیں نہیں بتا کیا یہ اور لوگوں کو بھی کیا ہے، اور عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی، وہاں لاکھوں بندہ تھا، اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے، اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت۔ اس سے تمہاری ہمت بہت بڑی اور تمہاری سیفٹی ہمت کرے، اور نہیں اس کی سیفٹی بہت ضروری ہے، ان کو کمزور کرے کہ ان کے ہمت ان کو تو اللہ کرے اور جو باقیوں کو اندھا کر دے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں، وہ تو وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے مبینہ آڈیو پر سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں مبینہ آڈیو کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، یہ گفتگو اگر درست ہے تو ذمہ داروں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ گفتگو میں جو ہے وہ ایک محترم جج کو جو ہے وہ پرسوٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں، اور ساتھ اپنی بزرگی کا، اپنے رشتے کا جو ہے وہ واسطہ دیا جا رہا ہے، اور اس کو اثر انداز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ گفتگو جو ہے یہ تو گھریلو گفتگو نہیں ہے، اس قسم کی گفتگو کا گھریلو خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ یہ گفتگو کرتی ہیں تو پھر دو ہی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ کویشچن کریں کہ جی یہ کسی نے کیوں ٹیپ کی، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، اور جس نے آڈیو بنائی ہے اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، لیکن آپ سامنے آئیں اور آپ شک و شبہ سے بالا تر ہونے کے لیے جو ہے اس کا فورنزک آڈٹ کروائیں۔ عمران خان کا کہنا ہے آڈیو ریکارڈنگ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ لوگ خود آڈیوز ریکارڈ کرا کر لیک کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ مریم نواز خود کہتی ہیں میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ان کی تاریخ ہے، یہ لوگوں کو خریدتے یا بلیک میل کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی الیکشن کی تاریخ دی ہے، بھاگنے نہیں دیں گے۔ نون لیگ الیکشن سے بھاگنا سمجھ آ رہا ہے، ان کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے۔ آئین واضح کہتا ہے اسمبلی تحلیل ہو تو 90 روز میں الیکشن کرانا ہوں گے۔ نواز شریف کو گارنٹی دی گئی عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پنجاب میں پہلے الیکشن 1 یونٹ کی سازش ہے، ایسا حل نکالنا چاہیے جس کا فائدہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور وفاق کو ہو۔ اداروں میں تقسیم کا نقصان عوام کو ہوگا۔ وہ نوڈیرو میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کی جمہوریت ریاست ایک امتحان میں ہے، ملک بھر میں تقسیم ہے، ایک طرف پارلیمان اور دوسری طرف ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ جہاں پورا ریاست جام ہو جائے، ہم اپنے اتحادیوں کے اس بات پہ منا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مخالفین سے بھی اگر ڈائیلاگ کرنا پڑے تو ڈائیلاگ کیا جائے، تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس ملک کو کیسے چلنا ہے۔ جو سازش کرنے والے ہیں ان کا کوشش بھی جاری ہے، ان کا یہ کوشش ہے کہ صرف اور صرف صبح پنجاب میں پہلے الیکشنز کروایا جائے، اور اگر یہ سازش کرنے والوں کی سازش کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں پھر آفیشلی جو ہے ان کو 1 یونٹ بنانے کے لیے کوئی ضروری ہی نہیں رہے گا۔ ایسا حل نکلنا چاہیے جس کا فائدہ پارلیمان کو بھی ہو، جوڈیشری کو بھی ہو، وفاق کو بھی ہو۔ سارے صوبوں میں ایک دن جو الیکشن ہونا ہے اس کے لیے ہم اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 2023 کا الیکشن کیمپین ہے وہ ہم لانچ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی جلد تیار ہوں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा है कि वो वफाकी काबीना को सिफारिश करेंगे कि मुबैना ऑडियो का मामला FIA के सुपुर्द किया जाए। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, मुंतखब ऐवान ही सुप्रीम इदारा है, इसे डिक्टेट नहीं किया जा सकता। कुछ मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। FIA इस चीज़ की तहकीक करे और मैं ये गवर्नमेंट के सामने मुद्दा उठाऊंगा, फेडरल कैबिनेट के सामने उठाऊंगा कि तो सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की बात है। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दो खवातीन की गुफ्तगू के बाइस पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है। पार्लियामान के इख्तियार पे अगर एग्जीक्यूटिव इंक्रोच करे, नहीं कर सकती, जवाब दे पार्लियामान के सामने। अगर जुडिशरी करे तो वो भी नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव के मामलात में जुडिशरी का कुछ इख्तियार है। इस वक्त एक अवामी मुश्किल तो है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि PDM ने हुकूमत में रहने के लिए कोई इदारा नहीं छोड़ा। फौज से लेकर अदलिया तक तमाम इदारों को मुतनाज़िया बनाकर ये लोग इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि PDM में शामिल जमातें इंतखाबात से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कानून के तहत हुक्म दे के इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता तो वाहिद सूरत श्रीलंका मॉडल पर अमल करना होगा। अवाम अपने हुकूक सरेंडर ना करें। पाकिस्तान की अवाम अशराफिया की पाकिस्तान को बर्मा या शिमाली कोरिया बनने की ख्वाहिशों पर पानी फेर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर्फ ब हर्फ गुफ्तगू पर कायम हूँ। मजीद कहा, हम क्यों किसी और के सामने झुकें। इस बारे उन्होंने कहा कि इमरान की हुकूमत आईनी तौर पर अदम एतमाद से हटाई गई। इस बहरान में सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर फरीक बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट आज मुकम्मल मुनक़सिम है। दूसरी तरफ जब देखता हूँ कि हम क्यों झुकें, किसके सामने झुकें, क्या वो क़ुव्वत है? पार्लियामेंट में अदम एतमाद उनकी पार्टी ने उसके ऊपर किया। पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वज़ीर आज़म है कि जो अदम एतमाद से इक़्तिदार से निकला है। नंबर 2 ये कि उसने पूरे 1 साल में तमाम कार्ड खेल लिए। अमेरिका से ख़त आया, वो झूठ, मुझे कत्ल कर रहे हैं, ये झूठ, पता नहीं क्या क्या वो पैंतरे बदलते रहे और फिर लॉन्ग मार्च फॉर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ लाही ने कहा, हुक्मरानों को मुआशी बहरान की फ़िक्र है, ना उनमें मुल्की मामलात सुधारने की सलाहियत है। आइन शिकन हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ गैर आइनी तौर पर इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। चौधरी परवेज़ लाही से लाहौर में सनतकारों, ताजिर रहनुमाओं और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने मुलाकात की। हाज़रीन से खिताब में चौधरी परवेज़ लाही ने कहा, PDM ने हर इदारे के खिलाफ महाज खोल रखा है। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मनफी मुहिम काबिल मज़म्मत है। इदारों को मुतनाज़िया बनाने की मुहिम के पीछे मास्टर माइंड नवाज शरीफ है। तारीख़ नाअहल तरीन हुक्मरान इंतखाबात का सामना करने से खौफज़दा हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात के अलावा कोई और तरीक़ा नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चौधरी शुजात हुसैन से टेलीफोनिक राबिता हुआ। मौजूदा सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी गई। टेलीफोनिक राबिते में सिराजुल हक ने कहा, चौधरी शुजात वाहिद सियासतदान हैं जिनके किरदार पर कोई दाग नहीं। उन्हें चाहिए कि मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा, वो खुद भी यही चाहते हैं कि चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन हों। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होने से जो भी वज़ीर आला बना वो बादशाह बन जाएगा और दीगर इलेक्शंस में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा। अब खबर है कि अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि PTI चेयरमैन इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। बहरान के नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरी अमल के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश बढ़ गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। ब्लूमबर्ग का बड़ा इंकशाफ, PTI चेयरमैन के नाकाम खारजा पॉलिसी, डूबती मईशत, रुखसती की बड़ी वजह। इमरान खान मौजूदा बहरान और इंतशार के जिम्मेदार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मरकजी किरदार करार। ब्लूमबर्ग का कहना है कि इमरान खान ने कबल अज इंतखाबात की ख्वाहिश करके पाकिस्तान को एक आईनी बहरान में धकेल दिया है। हुकूमत के मुताबिक इस वक्त इमरान खान के पैदा करदा हालात की बड़ी वजह से डिफॉल्ट से बचने IMF प्रोग्राम बहाली की जरूरत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इमरान खान की जानिब से 2
منصوبوں کی عملی تحلیل کرنے کے بعد از خود نوٹس لے کر انتخابات کا حکم جاری کیا، جبکہ وفاقی حکومت اس مداخلت کو قبول کرنے پر تیار نظر نہیں آ رہی، جس سے چیف جسٹس اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے دوبارہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں عید الفطر کے 3 روز شہریوں کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کے لیے واٹر بورڈ نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ سربراہ واٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ علاقائی افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ پانی شیڈول کے تحت فراہم کروائیں۔ اس حوالے سے کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ محمد علی حفیظ کی رپورٹ دیکھیے۔ عید پر کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، واٹر بورڈ عید کے 3 روز شہریوں کو بلا تعطل پانی فراہم کرے گا۔ واٹر بورڈ نے پانی کی فراہمی کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور متعلقہ افسران کو ہر حال میں شیڈول کے تحت پانی فراہم کرنے کا پابند کیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر بورڈ صلاح الدین احمد نے کہا کہ عید کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ چھٹیوں کے دن خاص کر کے عید کے اس میں انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوتی ہے، اور خاص کر میری ہدایت واٹر جو ہمارے ٹرنک مینز ہیں ان کے انجینئرز کو اور ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن کے انجینئرز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، اور ان کو انشور کیا گیا ہے کہ یہ تمام جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے جو ریٹیل کنزیومرز ہیں، جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، ان کو پانی مل سکے۔ کراچی میں عید کے موقع پر نہ صرف رہائشی آبادیوں بلکہ عیدگاہوں اور مساجد میں بھی پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہائیڈنس سیل کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ کراچی واٹر بورڈ کے علاقائی افسران عید پر اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہیں گے، جبکہ تمام پمپنگ اسٹیشنز کی صورتحال سے سی ای او واٹر بورڈ کو آگاہ رکھا جائے گا۔ تاریخی شہر ملتان میں رنگ برنگے چمکیلے کاغذوں اور باریک لکڑیوں سے بنے ہوئے گھگو گھوڑوں کا عید میلہ سج گیا۔ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے خانہ بدوشوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں بھی سٹال لگا لیے۔ اس بارے نعمان خان بابر کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ ان میں خوبصورت رنگوں، چمکتے کاغذوں اور باریک لکڑی سے گھگو گھوڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے دلکش گھگو گھوڑے، ہاتھی، طوطے اور ڈھول بچوں کو بے حد پسند ہیں، جن کی خریداری سے بچوں کی عید کی خوشی بھی مزید دوبالا ہو جاتی ہے۔ ڈگڈگی اور ڈھول لینے آیا ہوں، یہاں پہ میں بہت مزے کروں گا، ہاتھی بھی لوں گا۔ آج عید انکل نے مجھے پیسے دیے، میں نے یہ تلوار خریدی ہے، گھوڑا لیا اور ڈرم لیا۔ عیدگاہ چوک گھگو گھوڑوں کی تیاری کا مرکز بن گیا ہے، جہاں پر گھگو گھوڑے کی قیمت 200 سے 1000 روپے تک، جبکہ چھوٹے ہاتھی کی 500، طوطے اور ڈھول کی 100 روپے تک بٹوری جاری ہے، جن کی بڑے پیمانے پر سیل سے خانہ بدوش کاریگروں کی بھی چاندی ہو گئی ہے۔ ڈھول بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اور یہ اچھی اچھی چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، یہ 100 روپے کی بھی ہے، 200 کی بھی ہے، اور یہ 1000 روپے تک یہ سیل ہو جاتی ہے۔ عیدی سے گھگو گھوڑوں کی خریداری پر بچوں کی خوشی قابل دید ہے، جس سے کاریگروں کے مرجھائے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ گھگو گھوڑوں کی خریداری کے بغیر عید کی خوشی ادھوری ہوتی ہے، اسی لیے بچوں کی اکثریت ان کی خریداری کو ترجیح دیتی ہے۔ کیمرامین علی سلطان کے ساتھ نعمان خان بابر، دنیا نیوز، ملتان۔ پشاور میں 50 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا ہیریٹیج ٹریل کا منصوبہ عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ اور گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ منصوبے سے مطلوبہ مقاصد بھی حاصل نہ ہو سکے۔ وجوہات کیا ہیں بتائیں گے ذاکر اللہ اپنی اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی سابق صوبائی حکومت نے 4 سال قبل تاریخی گھنٹہ گھر اور تحصیل گورگٹلی کے درمیان ہیریٹیج ٹریل تعمیر کیا تھا۔ منصوبے کے تحت 85 گھروں اور دکانوں کو خوبصورت اور قدیمی انداز میں بحال کیا گیا، لیکن دیکھ بھال کے لیے کسی قسم کا انتظام نہ ہونے سے اس کی حالت دوبارہ خراب ہو گئی۔ ہیریٹیج ٹریل منصوبے کے لیے پہلے مرحلے میں 31 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، تاہم اس منصوبے کی تکمیل پر لاگت 50 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی۔ پرانے گھروں اور دکانوں کی تزئین و آرائش سمیت بیٹھنے کے لیے بینچ، خوبصورت ڈیزائن کی سٹریٹ لائٹس اور گلیوں کے لیے لکڑی سے بنائے گئے دروازوں سمیت فوڈ سٹریٹ بھی بنایا گیا تھا۔ ہیریٹیج ٹریل کی دیکھ بھال کے لیے 4 سال بعد بھی کسی قسم کا انتظام نہیں کیا گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ حکومت کا اچھا منصوبہ تھا، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے تو اچھی سوچ کی تھی پشاور سٹی کے لیے، لیکن یہ وہ کرامت نہیں ہوئی یہاں پہ، کیونکہ یہاں باہر کے لوگ آ رہے تھے، اب آنا بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ جو بینچز لگائے گئے تھے اور جو پرانی عمارتیں تھے ان کو سجایا گیا تھا، ان پہ کافی انہوں نے محنت کی تھی، لیکن اب وہ چند سال ہو گئے ہیں کہ وہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہیریٹیج ٹریل منصوبے کے قیام کا بنیادی مقصد تاریخی مقامات کی بحالی سمیت سیاحوں کو اس کی جانب راغب کرنا تھا۔ پشاور میں تاریخی اہمیت کے حامل مقامات کی بحالی خوشائند اقدام ہے۔
ताहम इसकी हिफाजत के लिए इक़दामात भी ज़रूरी है। कैमरामैन नासिर नईम के साथ ज़ाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। ईद के दूसरे रोज पार्कों में भरपूर रश रहा। लाहौर में बच्चा पार्टी ने चिड़ियाघर का रुख किया। कराची में सी व्यू पर रश रहा। मंचले ऊंट और घुड़सवारी से लुत्फानंदोज हुए। पेशावर, कोयटा, मरी और दीगर शहरों में बच्चा पार्टी ने झूलों पर ईदी लुटा दी है। ईद के दूसरे रोज शहरियों ने तफरीही मुकामात पर रुख कर लिया। पार्कों में हल्ला गुल्ला, बच्चा पार्टी की मौज मस्ती। कराची में मीठी ईद के दूसरे रोज फैमिलीज ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। किसी ने घुड़सवारी और ऊंट सवारी का मजा लिया तो कोई ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फानंदोज होता रहा। लाहौर में छोटी दुनिया वालिदैन के साथ चिड़िया घर पहुँच गई। मनपसंद जानवरों से खूब अटकेलियाँ की। इस्लामाबाद में टरू पर पार्कों में खूब रश रहा। बच्चों बड़ों ने खूब एंजॉय किया। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद मलिका कोहसार मरी पहुँच गई। पटियाला के पार्क में खूब हल्ला गुल्ला किया। फूलों के शहर पेशावर में बच्चों ने ईदी झूलों पर लुटा दी। कोयटा में शहरियों ने ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए फैमिली पार्क का रुख कर लिया। बच्चे मनपसंद झूलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। फैसलाबाद में फैमिलीज गर्म मौसम में आइसक्रीम पार्लर्स पर पहुंच गए। नौजवान दोस्तों के साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा लेते रहे। ननकाना साहब और कसूर में भी ईद के दूसरे रोज पार्क और तफरीही मुकामात भरे रहे। ईद के दूसरे दिन सयाहों की बड़ी तादाद ने मलिका कोहसार मरी में गुजारा। मौसम के साथ साथ मरी के चटपटे खानों से भी खूब लुत्फ उठाया। रात को मॉल रोड पर भी खूब हल्ला गुल्ला किया। मरी से हरीम जदून की रिपोर्ट देखिए। ईद का दूसरा दिन, स्याहों के मरी में डेरे, चेयरलिफ्ट पर सैर तो किसी ने की घुड़सवारी, किसी ने लिया लंबी वॉक का मजा, थक हार कर खानों पर भी फेरा खूब हाथ। सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ये सूरत है कि रात के वक्त की अगर आप जाएं या रहना जाएं ऊपर टॉप पे तो हमारी वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी और सेफ्टी है। हम यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। हम इंतजार कर रहे हैं चेयरलिफ्ट पर बैठने का। सैर व तफरीह का इधर हमने रुख किया हुआ है ताकि हम यहाँ पर भरपूर एंजॉय करें। आसपास पहाड़ होंगे, ऊंचाई में जाएंगे, हवाओं में होंगे, बहुत मजा आएगा। स्याहों की बड़ी तादाद ने गलियात खास तौर पर मलिका कोहसार का रुख किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के साथ साथ दीगर शहरों से बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंची। सारा दिन मौज मस्ती के बाद स्याहों ने होटलों का रुख किया और अपने मनपसंद खाने नोश फरमाए। ईद का जो मजा था वो डबल हो गया। यहाँ पे बच्चों ने झूले देख लिए और हमें यहाँ पर एक अलग से मजा मिला। सैर व तफरीह के लिए आए, हम सवाद से आए हैं। यहाँ मरी के माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम भी है और बहुत एंजॉय भी हो रही है। खाने पीने के घर से चीज़ें लेकर आए। इधर हमने बहुत सारा एंजॉय लिया, झूले लिए और हॉर्स राइडिंग की है और बहुत कुछ किया। शहरियों का कहना था कि सारा साल काम में गुजरता है। ईद जैसे त्योहारों पर दिलकश मकामात की सैर न सिर्फ इनको तरोताजा करती है बल्कि फिर से मेहनत करने का जज्बा बढ़ा दे। गलियात के दिलकश नज़ारे और चेयर लिफ्ट का ये सफर, यहाँ आने वाले सयाह अपनी खूबसूरत यादों का तोहफा साथ लेकर जाते हैं। कैमरामैन मून आकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, पटियाला। खाबे उड़ाने के दिलदादा अफराद हो जाएं होशियार। खाने पीने के मामूल में की गई तब्दीली कहीं बड़े नुकसान में न बदल जाए। माह रमज़ान के बाद कैसा डाइट प्लान लिया जाए, माहिरीन खुराक के मुफीद मशवरों पर मबनी। बिलाल अहमद की रिपोर्ट देखिए। माह रमजान के बाद खाने में बेएहतियाती कहीं महंगी न पड़ जाए, तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहते हैं 4 हफ्तों तक रोजे रखने के बायस जिस्म कम खुराक का आदी हो चुका। ऐसे में खाने के मामूलात में अचानक से आने वाली बड़ी तब्दीली मुश्किल में डाल सकती है। जब रमज़ान के बाद ईद का त्यौहार आता है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं कि घरों के अंदर दावतों का अरेंज किया जाता है। हम अपनी तरफ से खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन उसमें भी हमें फिर एकदम हमें सिंपल डाइट के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी बिलअमूम ईद के बाद और बिलखसूस ईद के दिनों में अपनी खुराक का तयन करें। मुर्गन, चटपटी और मसालेदार ग़िज़ाओं में यकदम किया गया इजाफा खतरनाक हो सकता है। हार्टबर्न के इशूज़, इंडाइजेशन के इशूज़, ठीक है, और डिस्पेप्सिया और सारी चीज़ें जो कॉमन लोगों में आम हो जाती हैं ज़्यादा खाना खाने की वजह से, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम साथ स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके साथ नोज़िया भी स्टार्ट हो जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक माह रमज़ान हमें खाने समेत हर शय में एतदाल पसंदी का दर्स देता है, जिस पर आम दिनों में भी अमल दरामद मुफीद है। खाना भी अपना और पेट भी अपना, इसलिए ज़रूरी है कि रमज़ान मुबारक के बाद भी ललचाते जी और खाने की जानिब बढ़ते हाथों को ज़रा काबू में रखा जाए। कैमरामैन अहमद अली के साथ बिलाल अहमद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।
रावलपिंडी इस्लाम आबाद के बासियों ने ईद का दूसरा दिन पार्कों और तफरीही मकामात पर गुजारा। कई खाना पकाकर साथ ले गए तो किसी ने होटलों के खानों पर हाथ साफ किया। जुड़वा शहरों के बासियों ने सारा दिन कैसे गुजारा, रिपोर्ट में जानेंगे। ईद का दूसरा दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद के पार्कों में बच्चों बड़ों की मौज मस्ती, झूले भी लिए और खाया पिया भी खूब। कहते हैं ईद पर हल्ला गुल्ला ना किया तो फिर क्या फायदा। पूरा साल बाबा ही खर्च करते हैं तो अब हम खर्च करेंगे। बोले कल बहुत मजा आया, ईदी सबसे ली है। आज मैं 500 रुपीज़ लेकर आया हूँ और मैंने वो भी स्पेंड की। मैंने स्विंग्स वगैरह लिए। अपनी ईदी खर्च करके तो और भी मज़ा आता है ज़्यादा। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे एंजॉय करके। शहरियों की बड़ी तादाद अपने अजीजों अकारिब के हमरा शाम गए तक सयाहती मकामात पर मौजूद रही। सूरज ढलने के बाद होटलों का रुख किया और जी भर के पसंद के खाने खाए। ईद के फर्स्ट डे तो आपको पता होता है कि निकलना मुश्किल होता है, गेस्ट वगैरह का आना जाना होता है, तो सेकंड डे होता है कि फैमिली के साथ बाहर कुछ खा पी ले इंसान और घूम फिर ले, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आए हैं, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पार्क आके, मतलब खुशगवार। एक तो पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही है यहाँ। मैंने सबसे ईदी ली है, बहुत मजा आया मुझे। मैंने बलून भी लिए। मैंने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आई हूँ। ईद की अभी बाकी हैं 2 छुट्टियाँ और शहरी तैयार हैं इन अयाम को भी भरपूर अंदाज में गुजारने के लिए। कहते हैं नया दिन नया प्लान होगा कि क्या करना है। खबर है कि मुल्तान में जिना पार्क के करीब पुलिस की फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO मुल्तान का कहना है मुल्जिमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। रिपोर्ट देखिए। एक अलमनाक वाकया पूरे शहर को रुला गया। मुल्तान में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से उस्मान और समी की मौत सभी को उदास कर गई। नाके पर ना रुकने की इतनी बड़ी सजा किसी ने सोचा भी ना होगा। मुल्तान के जिनाह पार्क के करीब पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार नौजवानों के ना रुकने पर फायरिंग कर दी, जिसका भयानक नतीजा निकला। ईद की रात खाना खाने के लिए जाने वाले नौजवानों की लाशें घर वापस पहुंची तो कोहराम मच गया। उस्मान 9वीं क्लास का तालिब इल्म था। फायरिंग के बाद पुलिस एहलकार मौके से फरार हो गए। दोनों नौजवानों के अहले खाना गम से निढाल हैं, जबकि अहले इलाका भी उदास है। उन्होंने उनको क्रॉस किया तो पीछे से ना उन्होंने रूटर दिया। उन्होंने समझा कि शायद रूटर किसी गाड़ी वाले को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। तो वो उन्होंने जैसे वो लिंक रोड पे जैसे उतरे हैं तो उन्होंने पीछे से फायरिंग कर दी। तो लिहाजा बस अब ये मारा पुलिस वालों ने, हमें तो इंसाफ चाहिए बस। कम से कम ऐसी काली भेड़ों को जो भर्ती किया हुआ है उनको सरेआम कटहरे में लाया जाए और उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि माओ के बच्चे महफूज रहें। और सारे लोग जो है दुनिया के अंदर अमन की जिंदगी जीना चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि बुरा काम करे। RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का कहना है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लवाहिकीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, काबिल मजम्मत वाकया है। इमीडिएटली इनको सस्पेंड भी किया गया, इनको बरामदगी भी दर्ज की गई और जो उनके लवाहिकीन है उनसे हमारे पुलिस अफसरों का राब्ता भी किया गया है। उनसे हम इज़हारे ताज़ियत भी करते हैं और इस वाकये की बड़ी मजम्मत भी करते हैं। बहुत जल्द इन पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उनसे इस तरह एक आम मुल्जिम से शुरू किया जाता है, बिल्कुल ऐसा किया जाएगा और इंसाफ किया जाएगा इंशाअल्लाह। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने नौजवानों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि उन्हें हर सूरत इंसाफ मिलेगा। पाक अफगान बॉर्डर तोरखम के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक और लाश मिल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। मरने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तोरखम बॉर्डर पर लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में ईद के दिनों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मलबे तले से एक और लाश को निकाल लिया गया, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मैयतें अफगानिस्तान मुंतकिल कर दी गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 20 से ज़्यादा ट्रक भी मलबे से निकाले गए। इमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू 1122, ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, पाक आर्मी और दीगर शरीक हुए। इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल हो गईं। इंतज़ामिया के मुताबिक बहुत जल्द रूट को बहाल कर दिया जाएगा। NDMA की हिदायत पर तकनीकी काम कल जाए हादसा का दौरा करके रिपोर्ट करेंगे।